limit and continuity. This was the topic we were doing. Related to the topic, let us do a small example. Show that the function f of xy, it is xy cube and divided by x square plus y raised to power 6. X is not 0, y is not 0, and f of 0, 0 is equal to 0 is not continuous at origin point. ये हमने प्रूव करना है. This function is not continuous at origin. So let us prove that. The function is clear, and it can also be written like this. It gives us 0 value whenever xy is equal to 0, 0. It is clear from this value. Now you know that we can take the limit of this function f of xy when xy approaches to the origin point 0, 0, and limit come out to be limit xy approaches to 0, 0. The function is xy cube and divided by x square plus y raised to power 6. Now you can take the curve जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. We can take the curves. Let xy is tending to the origin point along the line, and the line we can take here, that is y equal to mx. This was discussed in the previous class. Y equal to mx can be substituted here, so it becomes limit x approaches to 0. This is x, this is mx cube, and it is x square plus mx raised to power 6. So limit x approaches to 0, and it come out to be m cube x raised to power 4, and in the denominator it is x square plus m6 x raised to power 6. So ultimately what we will have, this is limit x approaches to 0, and it is m cube x square over 1 plus m6 divided by 1 plus and it is dividing 1 plus m raised to power 6 x raised to power 4. Now you can put the value of the limit. When you put x approaches to 0, न्यूमरेटर में भी 0 आ जाता है और डिनोमिनेटर में 1 plus 0. Ultimately it come out to be 0. Now we can take a different curve here. Let xy approaching to 0, 0 along the curve y is equal to mx cube. Suppose I am taking mx cube now. Therefore, limit xy approaching to 0, 0, and the function is f of xy. The value can be substituted. Xy approaching to 0, 0. Original function f of xy was xy cube divided by x square plus y raised to power 6. So it is a limit x approaching to 0, the value of x as it is, put the value of y, that is mx cube whole cube divided by x square plus mx cube 4 raised to power 6. Now limit x approaching to 0, थोड़ा simplify करते हैं, mx raised to power, but it come out to be, m x raised to power 333. It come out to be 10. This is x square plus m6 x raised to power. It come out to be 333. 6 times
it come out to be 18. So x square can be taken common. x square कॉमन लेकर के ऊपर नीचे कैंसिल कर दें और लिमिट पुट कर दें, तो फिर आपके पास वही वैल्यू 0 आ जाती है, सेम वैल्यू 0 आ जाती है। तो जब सेम वैल्यू आ रही हो तो फिर तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको प्रॉपर वेरीफाई कर ले कि क्या हर बार वैल्यू 0 ही आती है लिमिट की। अगर हर बार 0 आएगी फिर तो कंटिन्यूस होएगा, लेकिन अगर एक भी बार 0 नहीं आई तो फिर कंटिन्यूस नहीं होएगा। तो हम वो वाला केस डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक केस और लेते हैं जब हम कर्व को पुट करते हैं x इज इक्वल टू वाई क्यूब, और अगर आप x को वाई क्यूब पुट करते हैं फिर चेक करते हैं, ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस होएगा कि आपने हर एक केस डिस्कस कर लेना है, क्योंकि हर एक केस में अगर लिमिट सेम आ रही है तो फिर कंटिन्यूस बन जाता है। लेकिन अगर एक भी केस ऐसा हो जिसमें लिमिट 0 ना आए तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं होएगा। तो ऐसा ही केस ढूंढने की कोशिश करनी है हमने। सो दैट इज एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6 लिमिट वाई अप्रोचिंग टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यूब, दैट इज वाई 6 एंड दैट इज वाई 6 प्लस वाई 6। सो लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 इट कम आउट टू बी 1/2, क्योंकि y6 कॉमन लेकर के खत्म हो जाएगा तो 1/2 वैल्यू आ जाती है इस केस में। अब देखिए हमने एक ऐसा केस फाइंड कर लिया है जब लिमिट इज नॉट 0। सो व्हेन व्हाट डज इट मीन, इट मीन लिमिट इज नॉट यूनिक, और जब भी लिमिट यूनिक ना हो तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ xy is not continuous, and continuous, it is not continuous at the point origin, at the origin point, origin point पर ये continuous function नहीं है। तो इससे हमारे पास ये चीज प्रूव हो जाती है कि function is not continuous। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर क्लास कब से स्टार्ट हुई है? ये अभी थोड़ी देर पहले हुई है बेटे, यही क्वेश्चन करा है हमने। स्टार्ट हुई है। हाँ यही क्वेश्चन करा सर है। कर दीजिए ना, सर थोड़ा सा बैक कर दीजिए एक बार। सर मतलब अभी ये जो स्क्रीन के ऊपर आएगा आपने इसे स्टार्टिंग से कराया ना? सर तो हाँ यही क्वेश्चन कर रहा है अभी। ओके सर। हाँ, और सर थोड़ा सा जब पेज एक लिमिट बैक कर दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन वी हैव, और इस क्वेश्चन को आपने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो फंक्शन इज गिवन टू अस एंड वी कैन चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। और लास्ट लेक्चर में ये चीज डिस्कस करी थी that for checking the continuity the limit should be same for all the curves। तो उसको हमने 1 by 1 चेक करा। Yes, sir। पहले हम चेक करा है y इक्वल टू mx के लिए, फिर हमने सेकंड चेक करा है y इक्वल टू mx क्यूब के लिए। लिमिट तो सेम आ गया, लेकिन हमारा पर्पस है कि हम जनरलाइज रिजल्ट देंगे। जनरलाइज रिजल्ट के लिए हमें कोई ऐसा कर्व भी ढूंढने की कोशिश करनी है जिसमें वो 0 लिमिट ना आए। अगर कोई भी ऐसा कर्व एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इस फंक्शन का लिमिट 0 नहीं आता तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश भी होनी है। तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग x इक्वल टू वाई क्यूब कर्व, और x इक्वल टू वाई क्यूब लिया तो लिमिट 1/2 आ गया। तो अब लिमिट 1/2 आया है, 0 नहीं आया है। तो जब लिमिट सेम नहीं आया है तो कंटिन्यूस नहीं है, इट इज सर कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है ये। अगर लिमिट सेम आ जाता तो फंक्शन कंटिन्यूस रहता है। ये बात का खास ख्याल रखिए। लास्ट लेक्चर में भी ये चीज डिस्कस करा था। फॉर चेकिंग द कंटिन्यूटी द लिमिट शुड बी सेम, इट शुड ऑलवेज बी ओके। ओके, यस सर। Yes, sir. okay, Yes, let us check the continuity of another function. We have a question
that the function is given to us, that is x cube plus 2y cube. It is dividing x square plus y square, and xy is not non-zero here, and the value is 0 when x and y both are 0. You have to check the continuity at the origin point for this question also. तो इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी भी ओरिजिन पर ही चेक करनी है हमने, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जो हमारा डेफिनेशन में यूज होता है, वो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। लाइक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी आर्बिट्रेरी नंबर। ये हमने कोई आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, देन अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, y माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, और ये तभी होगा अगर x y नॉन जीरो है। ठीक, अब हम कंटिन्यूटी का मीन चेक करते हैं, f ऑफ x y माइनस 0 मॉडुलस। अगर हम कोई ऐसा नंबर फाइंड कर पाए कि हम f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 0, एक्चुअली दिस इज f ऑफ 0 0 एंड इट इज क्लियर f ऑफ एक्स वाई माइनस f ऑफ 0 0 की वैल्यू 0 ही है। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर फाइंड कर पाए कि जो इसकी वैल्यू है वो लेस देन दैट नंबर हो यहाँ पर, तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। इसी को हमने verify करना है by this method. So put the value here, f of xy is x cube plus 2y cube and dividing x square plus y square modulus। क्योंकि 0 तो हम रहने देते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक करके दो फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर एक्स क्यूब कर लीजिए, और दूसरे फैक्टर में 2y क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। और a प्लस बी मॉड लेस देन और इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस। वी आर यूजिंग द फॉर्मूला नाउ। इसको फर्दर फाइंड आउट करने के लिए पहली बात तो हम कांस्टेंट फाइंड करें। इसमें कांस्टेंट कोई भी नहीं है, मीन 1 है, तो वो नहीं आएगा हमारे पास। और आप इसको ब्रेक करके x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट का डिग्री, जो डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम करना है। तो ऊपर नीचे स्क्वायर स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसलिए एक एक्सेस सेपरेट कर लेते हैं, और 2 कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेते हैं। यहाँ भी वैसे ही कर लेते हैं, y इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिग्री को सेम करने के लिए, फॉर मेकिंग द डिग्रीज सेम। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, ए बी मॉड इज ए मॉड इंटू बी मॉड। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला हियर। So this is x mod into x square divided by x square plus y square. Similarly, 2 times y mod and y square over x square plus y square modulus. Now, what is the x mod? You just see. ये देखो जरा ध्यान से, x mod is less than epsilon by 2 and y mod is also less than epsilon by 2. So you can use the value here. This is a less than epsilon by 2 into what about this? अब ध्यान से देखिएगा जरा, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, एंड व्हाट डज इट मीन? इट मीन वी कैन सॉल्व अ लिटिल। ये देखिए, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस टर्म हियर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्लियर सी एक बात है
कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो नीचे डिनोमिनेटर इज बिगर। इस फैक्टर से ये बात क्लियर है कि डिनोमिनेटर बिगर है न्यूमरेटर से, और जब भी डिनोमिनेटर बिगर हो न्यूमरेटर से, सपोज दैट इज 2/3, अब डिनोमिनेटर 3, न्यूमरेटर 2, 3 is bigger than 2, or obviously this value is less than or equal to 1. There is no doubt about that. Yes, sir. So it is clear that this value is also less than or equal to 1. Equality exceptional केस में हम ले लेते होते हैं, वैसे यहाँ less than 1 ही है, but exceptionality is always there. So that is why we can, exceptionality का मतलब अगर y 0 हो गया तो फिर x square over x square exact 1 बन जाएगा, इसलिए इक्वालिटी ले लेते होते हैं। Similarly, in this factor we have 2 times epsilon by 2 into 1. So this 2 can be cancelled with this, and it is a new constant, that is 3/2 epsilon. ध्यान से देखिए, सॉल्व करके 3/2 epsilon बन जाता है। So we can name it a new constant, that is epsilon dash. So this value is less than epsilon dash, less than आ गया। So therefore f of xy minus f of 0, 0 is less than epsilon dash. It is a new constant, and the constant is equal to 3/2 epsilon, और epsilon हमने greater than 0 लिया था शुरू में, देख लीजिए। Any positive number which is arbitrarily chosen and a small positive number. So this is the definition of continuity. So it means one more thing, we can say, one more thing we can say also, limit of f of xy when xy approaching to 0, 0 is clearly 0, and that limit is equal to f of 0, 0. इस कंडीशन के साथ ये चेक होना बहुत जरूरी है। इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट कि इसकी वैल्यू 0 है और इसकी भी जब वैल्यू निकालेंगे वो 0 ही आएगा। सो दिस प्रूव्स दैट द फंक्शन f of xy is continuous at origin point 0, 0. ये भी एक टेक्निक है कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए। So by this way we can also prove the continuity of a function. So you must revise these two methods for checking the continuity. And after continuity we have a simple term of a derivative, but this is a partial derivative actually. Derivative आपने +2 में पढ़े थे, but now we have another case of a partial derivative, and थोड़ा सा ध्यान से, ये इसी का ही पार्ट है, ये टॉपिक कैलकुलस का कॉमन ही चलेगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव्स, जैकोबियन, मैक्सिमा, मिनिमा, all these topics will come under this heading of calculus. So पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? हमने +2 में करा था ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी मीन y इक्वल टू suppose this is 2x, so clearly y is a function of x, one dependent variable, one independent variable, और उस केस में dy by dx come out to be 2, but in the case of partial derivative, one dependent variable and more than one independent variable, mean on the right hand side we will have at least two variables, and dependent will be 1, independent will be 2 at least. So we can take the example, suppose z is equal to x plus 2y. So you can find out the partial derivative. It is denoted by del. ये del का symbol है. This is the symbol of del. इसको del भी कह देते हैं और curly भी बोल देते हैं। फिजिक्स में भी आप इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, del और curly। तो डेरिवेटिव एक ही वेरिएबल से पहले होएगा, z डिपेंडेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और जब x से करेंगे y को कांस्टेंट रखेंगे। सो इस फंक्शन का डेरिवेटिव x से, x का डेरिवेटिव 1 और y को कांस्टेंट रखना है ना,
तो y का डेरिवेटिव 0, अल्टीमेटली 1। सिमिलरली अब हम डेरिवेटिव करेंगे y से। जब y से करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे, तो जिसको कांस्टेंट रखा उसका डेरिवेटिव तो फिर 0 आएगा ना, और यहाँ पर 2y का डेरिवेटिव 2, तो 2 आ जाता है इसका डेरिवेटिव। ये एक एग्जांपल है जिससे हम डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, वन मोर एग्जांपल वी हैव, सपोज वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, so you can find out del z by del x. It is clear 2x plus 0, क्योंकि जब x से डेरिवेटिव करना है तो कीपिंग y कांस्टेंट, इट इज अंडरस्टूड। अगर आप भूलते हैं तो यहां लिख भी सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग, इसको नंबर 1 देकर के, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, और साथ में लिख लीजिए कीपिंग y कांस्टेंट, ये साथ में वर्ड लगा लीजिए तो आपको याद रहेगा कि उसको कांस्टेंट रखना है। तो दिस इज द डेरिवेटिव। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज 2y, एंड वी कैन आल्सो फाइंड आउट डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, del स्क्वायर z by del x स्क्वायर, del z by del x का डेरिवेटिव फिर x से, तो 2x का डेरिवेटिव फिर x से कितना आ गया 2। सिमिलरली del स्क्वायर z by del y स्क्वायर डबल ऑर्डर, इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि हम del z by del y का डेरिवेटिव करेंगे y से, तो वो ये है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे y से, तो इसका डेरिवेटिव कितना है 2। दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल ऑर्डर। एंड one more term which we generally use, del square z by del x del y, this is different। इसका मीनिंग है कि del by del x और del z by del y, ऐसे मतलब जो z by y का टर्म है उसका डेरिवेटिव x से, तो del z by del y कितना था 2y, और उसका डेरिवेटिव किससे करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर सी बात है, इसमें कोई x नहीं आ रहा है तो 0। So this is the way to do the partial derivatives. One more important thing, ये जो del z by del x होता है इसको हम स्मॉल p से लिखते हैं, और del z by del y को स्मॉल q से, ये आपने भूलना नहीं है। del स्क्वायर z by del x स्क्वायर को r से, ये हम मैक्सिमा मिनिमा में यूज करेंगे इसका, और del स्क्वायर z by del y स्क्वायर को हम लोग t से लिखते हैं, और दिस इज नेम्ड एज s, इसको हम s से लिखते हैं, del स्क्वायर z by del x del y। तो p q r s t, ये आपने फॉर्मूलाज एक तरह से याद रखने। अच्छा, एक और बात, del स्क्वायर z by del x del y इज ऑलवेज इक्वल टू del स्क्वायर z by del y del x, दोनों हमेशा सेम होते हैं, कभी भी चेक कर लीजिए। इसका मतलब है पहले y से डेरिवेटिव फिर x से, और राइट हैंड साइड पर जो टर्म है इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन डेरिवेटिव किसका z वाली टर्म का जो भी है ऑलवेज भी सेम। इस क्वेश्चन में भी सेम होएगा, यू कैन चेक। वन मोर थिंग, इसको शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, z x y, x और y, और इसको z y y। Similarly, this term can be written as z x x, or this term can be written as z y y। तो दिस इज द वे। और del z by del y को सिंपल z y, और del z by del x को z x, this one, this can be written as z x। It is clear, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल शो कर रहा है। So this is the meaning of a partial derivatives. Any question you want to ask about this? एक मिनट बैक कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पर साथ साथ नोट करते जाइए।
Okay. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear to all of you? Yes, sir. Let us take a small example. Yes, sir. Suppose we have u is equal to e raised to power x square plus y square. Then prove that. This is the question of prove that x del u by del x plus y del u by del y is equal to 2u log of u. This is we want to prove. And clearly u is a function of x and y. राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल हैं x और y. यहाँ z की जगह पर u दिया हुआ है, तो आपने ये वाला प्रूव करना है. दिस इज वी वांट टू प्रूव. रिमेंबर. सो लेट अस वेरीफाई दैट del u by del x का डेरिवेटिव निकालते हैं. del u by del x मीन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट. सो e का डेरिवेटिव का फॉर्मूला e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, प्लस 0 होना ना, तो वो 0 नहीं मैं लिख रहा. सिमिलरली del u by del y is e raised to power x square plus y square into 2y. Derivative with respect to y, keeping x constant. Now लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जिसको हमने प्रूव करना है इसका. तो पुट द वैल्यूज x del u by del x, y del u by del y. Now use the values here. E x square plus y square into 2 of x plus y e raised to power x square plus y square into 2 of y. So clearly 2 is common. E raised to power x square plus y square is also common inside x square plus y square. And from this given term, this one, you can take log of that. You just take log here. That is log of u is equal to x square plus y square. So it means its value is log u. So 2 log of u into what is its value? This is u. That is u. This is we want to prove. So this is a 2u log of u. It is easy to prove. वैल्यूज सीधी आपके पास यूज हो करके भरी गई. Now, one more thing, one more way by which we can prove the question. Suppose we have another question, and the question is u is equal to log of x cube plus y cube plus z cube minus 3x y z. तो अब देखिए u is a function of x y z. It is a function of 3 variables now. And prove that क्या है? del u by del x plus del u by del y plus del u by del z whole square is equal to 9 upon x plus y plus z whole square. So let us find out the solution. Del u by del x, ये हमने प्रूव करना है. दिस इज वी वांट टू प्रूव इन दिस. मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस वैल्यू 9 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. सो पहले डेरिवेटिव करते हैं x से. तो लॉग का
सर 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 आवाज नहीं आ रही सर। सर शायद मेल आईडी से लीव हो गए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर है नहीं, उनकी मेल आईडी जिससे वो बोल रहे थे। स्क्रीन तो चल रही है। स्क्रीन प्ले किसी और आईडी से होता है तो। यस यस सर। सर। सुन रहे हैं? यस सर। यस यस सर। सर। So this is the question we have. You can find out the यस सर। derivative of u with respect to x. That is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. और ध्यान से देखिए डेरिवेटिव विद सर रिस्पेक्ट टू x. हाँ जी, सर सर आपकी हाँ जी. आवाज बहुत स्लो आ रही है। अभी भी स्लो आ रही है? सभी को स्लो जा रही है? नो नो सर सर, ठीक है हम सर। नो क्लियर है। सर क्लियर है। सर स्लो आ Yes. रही है। बेटे आप अपना चेक कर लीजिए ना, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी। अंजलि आप बोल रहे थे? यस सर। चेक करिए एक बार अपनी तरफ से। मेरी तरफ से सर तो ठीक इधर है। से तो फुल है पूरी। तो ये बच्चे अगर मेरी कम आ रही होती ना आवाज, फिर सभी ने कहना था ना। बाकियों को ठीक आ रही, ऑडिबल है? यस सर। यस सर, क्लियर है। सर। यस बेटा सर। ठीक आ रही है। सो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 अपॉन दैट। लॉग का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो 1 ओवर होता है ना। सो 1 अपॉन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सो x क्यूब का डेरिवेटिव होएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का 0 होएगा, z क्यूब का भी 0 होएगा, और माइनस दिस साइन with respect to x derivative, that is 3yz. So ये डेरिवेटिव आया है with respect to x. So 3 is common. This is x square minus yz divided by x cube plus y cube plus z cube minus 3x yz. तो ये पहला डेरिवेटिव है with respect to x. Similarly हम लोग दूसरी टर्म्स का डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, डेल यू बाय डेल वाई। सिमिलरली मतलब इसी के पैटर्न पर लिख लेते हैं। आप चाहे फाइंड करके लिखिए, 3y स्क्वायर माइनस एक्स जेड डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x yz। और
last derivative with respect to z, that is 3z square minus xy divided by denominator is the same, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा डेरिवेटिव का 3xyz। अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड तीनों का एडिशन है, बीच में प्लस साइन है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड। डिनोमिनेटर कॉमन है तीनों का, तो डिनोमिनेटर को कॉमनली ही लिख लेते हैं, और ऊपर वाली टर्म में हमारे पास आ जाता है 3 is there inside x square plus y square plus z square minus xy yz zx। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ यू कैन मेक द फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करके हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को फैक्टराइज कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसको हम लोग फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये डिनोमिनेटर टर्म का फैक्टराइजेशन है, if you remember the formula of that। so ये ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज ये सेम फैक्टर सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास बचता है 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म हमारे पास बच जाता है। अब ध्यान से देखो, जो हमने प्रूव करना है वो ये है स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और क्लियर सी बात है स्क्वायर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अब हमारे पास करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। तो यू कैन राइट डाउन नाउ, स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड से डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो ये टर्म हमारे पास बन जाती है, और यही हमारा फाइनल प्रूफ था जो हमने करना था। सो दिस वाज द प्रूफ विच वी हैव टू डू। इसी में हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, वी कैन डू सेकंड पार्ट आल्सो, एंड सेकंड पार्ट इज दिस, दैट इज लिटिल डिफरेंट, दैट इज द डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय। सर इंग्लिश की क्लास चल रही है मुझे। हाँ जी, इंग्लिश की क्लास भी हो गई है? इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो गई है सर। यस सर। Okay. Okay, we shall continue in the next class then. Thank you very much. यस सर। सर थैंक यू सर। नहीं सर थैंक यू सर। हाँ, हिमांशु बोल रहे हैं कुछ?